Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to learn about a very important process, that is the process of birth. So far we have learned about all the changes about on the conception process and also how a baby, a fetus develops from a mere zygote to an embryo and as a fetus. So we have come across the prenatal process of development, and now the fetus is all ready for the outer world to start its process out of the mother's womb, to start its life out of the mother's body. So that is how it is going to start the process with the process of birth. So the birth process occurs in stages. It occurs in different contexts, and also in most cases it involves one or more attendants, यानी helpers भी होते हैं, काफ़ी stages भी होती हैं और काफ़ी सारे अलग-अलग context भी होते हैं. Stages we are just going to learn. Attendants could be the doctors, nurses, dais, trained birth attendants, counselors, helpers, etc. And context could be many. Context could be preterm delivery, context could be an accident, context could be an injury, etc. So the stages of birth, the birth process occurs in 3 stages. The first stage is the longest of the 3 stages. यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि the birth is taking place, यानी the baby is moving out of the mother's womb through the birth canal through uterine contractions, यानी through the contractions of the uterus, the baby is moving out and towards the outer side of the body. So how is that possible? The uterine contractions start in the first stage and are 15 to 20 minutes apart at the beginning. शुरुआत में 15 से 20 मिनट में एक contraction आता है जो कि 1 मिनट तक रहता है. That contraction lasts for up to a minute. This happens in the first stage. First stage में ही ये contractions वुमन के सर्विक्स को स्ट्रेच और ओपन होने में हेल्प करती है, यानी where the uterus ends, the cervix starts. Cervix is basically the mouth of the uterus and then starts the birth canal and then the outer world. So the baby is in the uterus right now, and the contractions of the uterus is making the cervix to stretch and open and make space for the baby to move out. The intensity then increases because as the stage progresses, the contractions become closer. पहले 15 से 20 मिनट में एक contraction हो रहा था, अब contractions are appearing every 2 to 5 minutes. यानी contractions अब ज़्यादा frequently हो रहे हैं because we want the cervix to open up more wider and faster. The intensity is also increasing. Now the contractions are more intense. By the end of this first birth stage, the contractions are able to dilate, यानी open up the cervix to an opening of about 10 centimeters or about 4 inches, ताकि बेबी का सर जो है यूट्रस के से होता हुआ सर्विक्स के मुंह से बाहर होता हुआ वेजाइनल कैनाल यानी बर्थ कैनाल तक पहुंच सके. Okay, the intensity has increased and now the first stage is nearing its completion. पहली स्टेज खत्म होने वाली है. कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो अब हर 2 से 5 मिनट में हो रहे हैं, उसकी वजह से यूट्रस का माउथ यानी द सर्विक्स हैज ओपन्ड बाय 4 inches. Now the woman is having, if the woman is having her first child, on an average it can last from 6 to 12 hours. But if it is the second child or the third child, this first stage can be much shorter. Okay, this is still the longest stage of the stage of birth, of the process of birth. The second stage is only a few minutes long, यानी 45 से 60 मिनट, 1 घंटे, पौन से 1 घंटे तक, पौने से 1 घंटे तक ये सेकेंड स्टेज चलती है. इट बिगिंस व्हेन द बेबीज हेड स्टार्ट्स टू मूव थ्रू द सर्विक्स इनटू द बर्थ कैनाल. यानी सर्विक्स को खोलने का काम फर्स्ट स्टेज में हुआ, ओपन अप करने का, डायलेट करने का, और अब सेकेंड स्टेज शुरुआत होती है जब बेबी का सर जो है वो सर्विक्स की ओपनिंग से बर्थ कैनाल की तरफ मूव कर रहा है.
ये स्टेज खत्म होती है when the baby completely emerges out from the mother's body, यानी पहले सर्विक्स से बाहर आता हुआ वजाइनल कैनाल या बर्थ कैनाल से, शरीर से बाहर आता हुआ पूरा शरीर is out of the woman's body and the second stage is finished. It takes about 45 to 60 minutes for the woman to push out the baby once the cervix has dilated to a required width, and then the baby is out. With each contraction, the mothers bear down hard, because this is the time, second stage is the time when the mother has to push the baby out of her body, and by the time the baby's head is out of the mother's body, the contractions come almost every minute and last for a minute. यानी पहले फर्स्ट स्टेज में जहाँ हर 2 से 5 मिनट में contractions आ रहे थे, now when the baby's head is moving through the birth canal, now the mother has to push very hard, and also the contractions are also very intense and very frequent. The contractions are coming every minute the contractions are coming, and it is making the baby move forward. The stage typically lasts approximately for about 45 minutes to an hour. Now once the baby's whole body is out, that doesn't mean that the process of birth is over. No, now it's the third stage, that is the afterbirth. इस समय प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और बाकी मेम्ब्रेन्स जो कि बेबी को सराउंड कर रही थी, प्रोटेक्ट कर रही थी या फिर नर्चर कर रही थी, वो सब एक्सपेल आउट हो जाती है, माता के शरीर से बाहर हो जाती है. सो आफ्टर बर्थ हैपन्स आफ्टर द बेबी इज बोर्न, बट इन आफ्टर बर्थ स्टेज ऑल दी अदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो हमने प्रीनेटल डेवलपमेंट में पढ़ा था, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है वो सारे माता के शरीर से एक्सपेल होकर बाहर निकाल दिए जाते हैं. ये फाइनल स्टेज है. इट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द 3 स्टेजेस एंड इट ओनली लास्ट्स अ फ्यू मिनट्स. सिर्फ कुछ मिनटों में, एज सून एज द बेबी इज आउट, कुछ मिनटों में बाकी सारा सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी बाहर निकाल दिया जाता है. सो दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ birth that happens. And now let's move on to the methods that how we are going to make this childbirth a reality. What all methods are followed in childbirth? So the first method is medication. Medication per se is not the overall method of childbirth, but it is an assisting methodology जिसके माध्यम से बर्थिंग प्रोसेस को जो है वो असिस्ट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है. मेडिकेशन जो है वो बेसिकली 3 कैटेगरीज में होती हैं, एनाल्जेसिक्स, एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीटोसिन, और जिसे हम नॉर्मली पाइटोसिन के नाम से जानते हैं. एनाल्जेसिया या एनाल्जेसिक्स जो है वो पेन रिलीव करने के लिए यूज होते हैं. इसमें ट्रैंक्विलाइजर्स यूज हो सकते हैं, कुछ नार्कोटिक्स भी यूज हो सकते हैं, एंड दे आर बेसिकली यूज्ड टू relieve some pain, although they are not highly recommended. Then comes anesthesia. It is used in the later stage of the first stage. Okay, the first stage which goes from about 6 to 12 hours can go from about 6 to 12 hours. इसकी later stage के ऊपर anesthesia administer किया जाता है ताकि डिलीवरी के दौरान sensations को block किया जा सके. General anesthesia is not used because it can harm the whole birthing process and can be transmitted from through the placenta to the fetus, which is not good, which is not favorable. आजकल epidural बहुत यूज हो रही है, which is regional anesthesia, and it numbs the woman's body from the waist down, यानी कमर से नीचे जो है वो पूरी numb कर दी जाती है body. Especially it is done in case of cesarean deliveries that we are going to read shortly. Then there is oxytocin. It is a synthetic hormone which is used to stimulate contractions. Okay, contractions के बिना, like I said, contractions के बिना it is very difficult for the baby to move forward. So अगर किसी केस में contractions जो है वो सही intensity के नहीं हो रहे हैं, तो बच्चा जो है वो आगे सही rate से, pace से move नहीं कर पाएगा. And the birthing process is quite strenuous, quite stressful for the baby itself. क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अभी तक जहाँ मदर से कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन और बाकी सारा सपोर्ट ले रहा था, बर्थिंग प्रोसेस के दौरान काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि बच्चा को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, एंड दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम, एंड वी कैन नॉट
हैबिट कि बच्चा जो है वो बर्थिंग कैनाल से काफी वक्त लगाकर बाहर आ रहा है. सो कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प टू पेस इट अप द प्रोसेस, एंड इफ फॉर सम रीजन द कॉन्ट्रैक्शंस आरंट हैपनिंग, देन इन दैट केस कॉन्ट्रैक्शंस को केमिकली एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द यूज ऑफ मेडिकेशन, प्रिसाइजली बाय द यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन. Then comes the cesarean delivery kind of childbirth. Naturally or normally the baby's head comes out of the birth canal first, comes out of the vagina first. However, अगर बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, यानी बच्चा का सर जो कि नॉर्मली नीचे होना चाहिए, जो कि डिलीवरी के प्रोसेस को या मूवमेंट जो बच्चे का होता है शरीर से बाहर आने का उसको ईजी करता है. बट इमेजिन इफ बच्चे का पैर नीचे है, सर ऊपर है, तो द head is not the first thing to come out of the mother's body. In this case, it is very difficult to ensure a healthy delivery. Breech births can also cause respiratory problems to the baby. Breech births are those births in जिसके अंदर बच्चा उल्टा पैदा होता है, यानी बच्चे का सर पहले निकलने की बजाय the lower portion of the baby comes out first. Cesarean delivery में इस respiratory problem का रिस्क नहीं लिया जाता, और उसी समय बच्चा जब ब्रीच पोजीशन में पाया जाता है तो एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है. इन दिस सिजेरियन डिलीवरी द बेबी इज रिमूव्ड फ्रॉम द मदर्स यूट्रस थ्रू एन इंसिजन मेड इन हर एब्डोमेन, यानी माँ के निचले एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में, निचले पेट पे कट लगाकर यूट्रस को इंसिजन करके बेबी को बाहर निकाला जाता है. इसके माध्यम से हम बच्चे को नॉर्मल बर्थिंग कैनाल के पैसेज से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, सीधा यूट्रस से कट करके, यूट्रस को कट करके बच्चे को बाहर निकाल रहे हैं. इट इज highly recommended for those cases where the baby's position is in the breech position, or the baby's weight is, the baby is very heavy, or also if there is any sort of complication, or if the delivery process is taking very long time, in order to prevent some respiratory problems that can happen if the delivery process is taking a long time. To prevent those complications, cesarean delivery option is normally opted for. Then comes the other method, that is natural childbirth. This is all about delivering the baby through the birthing canal without any surgery, and this method aims to reduce the mother's pain by decreasing her fear through education about childbirth. It works on the logic that if you are aware of a process, if you know every nuance and every aspect of a process, you will be less anxious about it. अगर हमें पता है कि एक सर्जरी इस तरीके से होने वाली है, this is what I am going to go through, then you get less anxious and you worry less, and you are more understanding of the whole process. So it aims to reduce the mother's pain by decreasing her fear through education about childbirth, and also by reducing her and her partner by teaching her and her partner to use breathing methods. वो अपने आप को रिलैक्स करना सिखाया जाता है, मदर को रिलैक्स करना सिखाया जाता है, ताकि डिलीवरी के दौरान वो इजीली इस प्रोसेस को बेयर करने की कोशिश करे, पेन से ज़्यादा बॉदर नहीं हो और डरे ना, एंग्जियस ना हो. The second related method is prepared childbirth. ये फर्डिनांड लमाज द्वारा दिया गया था. प्रिपेयर्ड चाइल्ड बर्थ को लमाज मेथड भी कहा जाता है. इसमें स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स इंक्लूड की जाती हैं, ताकि फाइनल स्टेज ऑफ लेबर, जिसमें हमने कहा था कि दिस इज द टाइम इन द सेकेंड स्टेज व्हेन द मदर इज मेड टू पुश हार्ड push out the baby hard out of the body. To control pushing in this final stage, special breathing techniques are taught to the mother, and काफ़ी डिटेल में मदर को पहले से ही समझाया जाता है पूरी एनाटमी, फिजियोलॉजी ऑफ द बर्थिंग प्रोसेस, हाउ द बेबी इज गोइंग टू मूव आउट, व्हाट द मदर्स बॉडी इज गोइंग टू गो थ्रू ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस. इन दिस द प्रेग्नेंट वुमेन्स पार्टनर यूजुअली सर्व्स एज अ कोच, जो अटेंड करता है चाइल्ड बर्थ क्लासेस उसके साथ और उसको ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन में मदद करता है. ये इसका लॉजिक ये है कि जब इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए तो मदर को पता होता है कि बर्थिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, एंड इन द एंड इट बिकम्स अ बिट familiar for the mother
to go through this very taxing process. So these are the 4 methods. Medication is an assistance method where the whole childbirth process is assisted by oxytocins and analgesics and anesthesias. Then we have cesarean deliveries, which are opted in case of breech births or other kind of complications if the birthing process is taking quite a lot of time and if there is any problem with some respiratory issues that could arise for the baby. Then we have natural childbirths, जो कि breathing techniques से related है, mother को ज़्यादा से ज़्यादा aware करने से related है, and the same thing is done in prepared childbirth as well, जिसके अंदर mother और उसका partner मिलके पूरे process को समझते हैं, breathing और pushing के process को समझते हैं, ताकि anxiety ना हो, fear ना हो, और there is a process of familiarity, there is an aspect of familiarity with the childbirth process. Now, as soon as the baby is born, one of the most important thing that is done is assessing the baby. The baby's assessment is very imperative. It is very important. Why? Because ये वो time होता है जब अगर बच्चे को suddenly किसी assistance की ज़रूरत है, medical assistance की ज़रूरत है, तो वो पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है. जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बच्चे का environment पूरी तरीके से change हो चुका है. Now child is no longer protected by the optimum temperatures and optimum environment of the mother's womb. Now the baby is exposed to lots of contaminants, infections, microorganisms, etc. So right now the baby's adjustment is to be assessed. Baby माता के शरीर से बाहर आने के बाद किस तरीके से बाहरी वातावरण से एडजस्ट कर रहा है, क्या कोई इनहेरेंट कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या बच्चा ढंग से ब्रीथ कर पा रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए बच्चे को असेस किया जाता है. ये normally almost immediately किया जाता है after birth, after the baby has been introduced to his parents. The newborn is assessed by weighing assessed by weighing the baby, and then it is cleaned and it is tested for signs of some developmental developmental problems जो कि urgent attention garner चाहती हैं, कुछ चाहती हैं, right? कि बेबी को इसलिए असेस किया जाता है कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है जो अर्जेंटली मेडिकल अटेंशन चाहती हो. इसमें 3 तरीके यूज होते हैं. द फर्स्ट वन इज एप्गार स्केल. एप्गार स्केल सबसे वाइडली यूज्ड मेथड है विच असेसेस द हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न at 1 minute after birth and 5 minutes after birth. Okay, so as soon as the baby is born, within the first minute the baby is assessed through APGAR scale, and after 5 minutes the baby is assessed again through APGAR scale. APGAR scale जो है वो बच्चे की हार्ट रेट, उसके ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी एफर्ट, उसके मसल टोन यानी मांसपेशियों के खिंचाव, बॉडी के कलर और रिफ्लेक्सेस को असेस करता है. इन्फेंट की हार्ट रेट, ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेटरी एफर्ट, मसल टोन यानी मांसपेशियों के खिंचाव, बॉडी कलर और रिफ्लेक्सेस को असेस करता है. इसके बाद इस असेसमेंट के आधार पर बच्चे को एप्गार स्कोर के माध्यम से स्कोरिंग की जाती है. 0, 1, 2 हर साइन की कोई ना कोई 1, 2, 0, 1 और 2 की स्कोरिंग की जाती है. उसके बाद उन स्कोर्स को टोटल किया जाता है. इन 5 मापदंडों पर बच्चे को असेस करके हर मापदंड पर स्कोर किया जाता है और उस स्कोर को टोटल किया जाता है. अगर एप्गार स्केल का टोटल स्कोर 7 से 10 के बीच आता है, देन द न्यूबॉर्न्स कंडीशन इज assessed to be good. It is concluded to be good, that the newborn is adjusting very well with the new environment and the breathing, color, everything is good. If the score is the total score is 5, then there can be some developmental difficulties. यानी बच्चे को समस्या आ रही है एडजस्ट करने में, सामंजस्य बिठाने में. And if the score is 3 or below, then it is an emergency, and this indicates that the baby might not survive, that the baby is struggling extremely and it might not survive. So this is how the APGAR scale is good at assessing the newborn's ability to respond to the stress of delivery and also to the new environment. क्योंकि delivery अपने आप में, like I said, is a very strenuous process and experience for the fetus and for the baby. So उस स्ट्रेस के चलते बेबी इज ओके और नॉट, ये असेस किया जाता है, और बाहर के वातावरण से उसका एडजस्टमेंट कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी असेस किया जाता है.
इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज हाई रिस्क इन्फेंट्स जिनको रिससिटेशन की ज़रूरत है, यानी ब्रीदिंग असिस्टेड ब्रीदिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा ये तो बाहरी मानदंड थे जिनके ऊपर एब्गार स्केल का उपयोग किया जाता है। अगर कोई और भी ज़्यादा इन डेप्थ असेसमेंट करना चाहता है, थॉरो असेसमेंट करना चाहता है, तो NBAS यूज़ किया जाता है, ब्राजिल्टन नियोनेटल बिहेवियरल असेसमेंट स्केल। इस NBAS के माध्यम से बच्चे के न्यूरोलॉजिकल कॉम्पिटेंस को असेस किया जाता है। इट इज़ टिपिकली परफॉर्म्ड विद इन 24 to 36 आवर्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, बच्चे के जन्म के 1 से 2 दिन के बीच में, 1 से 3 दिन के बीच में जो है इसको बच्चे को न्यूरोलॉजिकल कॉम्पिटेंस जो है उसकी असेस की जाती है। इसके बाद जो ये NBS जो है वो असेस करता है बच्चे के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को, रिफ्लेक्सेस को, और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है लोगों को और ऑब्जेक्ट्स को लेकर। 16 अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्सेस जैसे कि स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, रूटिंग असेस किए जाते हैं। इसके साथ ही चेहरे और आवाज़ों को देखकर बच्चा रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की आवाज़ से, कोई रैटल से अगर बच्चा रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं वो ब्राजिल्टन नियोनेटल बिहेवियरल असेसमेंट स्केल यानी NBAS के माध्यम से असेसमेंट किया जाता है। बच्चे की न्यूरोलॉजिकल कॉम्पिटेंस को देखा जाता है। ये आमतौर पर बच्चे के जन्म से 24 घंटे से लेकर 1 माह तक के बीच में ये टेस्ट लगाकर बच्चे को असेस किया जा सकता है। एक और NBAS से रिलेटेड स्केल है NNNS, NNS, Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale। Neonatal Intensive Care Unit Network Neurobehavioral Scale ये प्रोवाइड करता है एक और असेसमेंट का तरीका जिसमें बच्चे का बिहेवियर, न्यूरोलॉजिकल और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज और रेगुलेटरी कैपेसिटीज को असेस किया जाता है। जहां NBAS यानी ब्राजिल्टन नियोनेटल बिहेवियरल असेसमेंट स्केल नॉर्मल हेल्दी इन्फेंट्स या फुल टर्म इन्फेंट्स को असेस करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वहीं NNNS असेस करता है एट रिस्क इन्फेंट्स को। ये खासकर उपयोगी है प्री टर्म इन्फेंट्स के इवैल्यूएशन के लिए, बट वो इन्फेंट्स जो 30 हफ्ते से पहले पैदा हो चुके हैं उनके ऊपर ये NNS इतना इफेक्टिवली असेस नहीं कर पाता। हाउएवर अगर 38 वीक जो नॉर्मल 9 मंथ डिलीवरी 9 मंथ का जेस्टेशनल एज है उससे कम में यदि बच्चा पैदा हो जाता है तो NNS के माध्यम से हम उसकी न्यूरोलॉजिकल कॉम्पिटेंस, उसकी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स, उसका व्यवहार आदि के माध्यम से उसको हम असेस कर सकते हैं। Now let's talk about what are the complications of birth। जन्म के समय बच्चे जन्म से रिलेटेड या बर्थिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। द फर्स्ट वन इज प्री टर्म इन्फेंट्स। Preterm infants are those which are born 3 weeks or more before the pregnancy has reached its full terms। यानी 37 वीक्स के जेस्टेशनल पीरियड के 2 से 3 हफ्ते कंप्लीट करने से 2 से 3 हफ्ते पहले ही यदि बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी बच्चे का फुल जेस्टेशनल एज जो है, जो 37-38 वीक्स का होता है, उससे 2-3 हफ्ते पहले यदि शिशु का जन्म हो जाता है तो उसे हम प्री टर्म यानी टर्म कंप्लीट करने से पहले प्री टर्म बेबी का नाम देते हैं। फिर आता है लो बर्थ वेट इन्फेंट्स। दिस इज अनदर कॉम्प्लिकेशन दैट अराइजेस। लो बर्थ वेट इन्फेंट जो है वो यदि 2.5 किलो से कम है तो उसे लो बर्थ वेट LBW इन्फेंट कहा जाता है। जन्म का वजन यदि उसका 2.5 किलो से कम है तो इट इज अ लो बर्थ वेट इन्फेंट। अगर वो 1.58 तकरीबन 1.5 किलो से कम वजनी है तो उसे वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट कहा जाता है, और यदि वो 1 किलो से भी कम वजन का है तो उसे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट इन्फेंट न्यूबॉर्न कहा जाता है। सो दिस इज हाउ a newborn is termed low birth weight, very low birth weight or extremely low birth weight. Then we have small for date infants जिन्हें small for gestational age infants भी कहा जाता है। These are those infants whose birth weight is below normal when the length of the pregnancy is considered। यानी बच्चा
एक तय जेस्टेशनल एज पर उसके अनुरूप जितना वजन उस बच्चे का होना चाहिए उतना नहीं है। यानी उस जेस्टेशनल पर्टिकुलर एज पे, यानी अगर 33 वीक का बच्चा है तो उसका वजन अगर उस एज ग्रुप के बच्चों के 90% जो बच्चे हैं उसके वजन के हिसाब से कम है तो उसे स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट्स कहा जाता है। ये प्री टर्म भी हो सकते हैं, फुल टर्म भी हो सकते हैं, यानी पूरा 37 वीक का फुल टर्म करने के बावजूद यदि बच्चा छोटा है, बच्चे का वजन कम है, तो इसे स्मॉल फॉर डेट इन्फेंट कहा जाता है। इन कॉम्प्लिकेशंस के कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी गंभीर हो सकते हैं, काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। अब ज़्यादातर प्री टर्म बच्चे और लो बर्थ वेट इन्फेंट्स जो हैं हेल्दी, उनका रिजल्ट हेल्दी भी हो सकता है कि वो आगे जाकर हेल्दी वेट गेन कर लें और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लें, बट आमतौर पर यह देखा जाता है कि नॉर्मल बर्थ वेट इन्फेंट्स के कंपैरिजन में या फुल टर्म इन्फेंट्स के कंपैरिजन में उनमें कुछ हेल्थ या डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आने के आसार, आशंकाएं ज़्यादा होती हैं। एक्सट्रीमली प्री टर्म इन्फेंट्स जो होते हैं, जो कि 28 हफ्तों में ही पैदा हो जाते हैं, 37 हफ्तों की टोटल जेस्टेशनल एज हम मानते हैं, यदि उसके कंपैरिजन में यदि 28 हफ्ते में ही बच्चे का जन्म हो जाता है तो हम उसे एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबी मानते हैं। और यदि बच्चा 33 हफ्तों से पहले जन्म ले लेता है तो हम उसे वेरी प्री टर्म इन्फेंट मानते हैं। 37 पे फुल टर्म, 33 पे वेरी प्री टर्म बेबी और 28 वीक से पहले जन्म अगर हो जाता है तो हम उसे एक्सट्रीमली प्री टर्म इन्फेंट मानते हैं। जितना जल्दी बच्चे का जन्म होता है उतना ही कम उसका वजन पाया जाता है और उतना ही ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम होने के चांस उन बच्चों में बढ़ जाते हैं। सर्वाइवल रेट्स उतनी ही कम होती जाती है जितना जल्दी बच्चा पैदा हो जाता है। इसके अलावा सिवियर ब्रेन डैमेज के भी चांसेस प्री टर्म, वेरी प्री टर्म या एक्सट्रीमली प्री टर्म बेबीज में देखने मिलते हैं। जो बच्चे लो बर्थ वेट से सफ़र कर रहे हैं उनके जो नॉर्मल बर्थ वेट वाले जो उनके साथी हैं उनकी तुलना में लर्निंग डिसेबिलिटीज़, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जैसे कि एस्थमा, ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस लो बर्थ वेट इन्फेंट्स में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बर्थ वेट इन्फेंट्स। सो इस हिसाब से consequences जो हैं, this is how serious these consequences are and this is how severe complications that can arise due to the complications related to birth, whether it is a preterm birth, whether it is a low birth weight baby or small for date infant. So that is all about the process of birth and various methods that are associated with the birthing process and also some complications and their consequences related to the birthing process. That is all for today's class. For notes, do check the description box below. Thank you all very much.